नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। कहानियों के इस खास कार्यक्रम में फिर लौटे हैं आपके पास एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है अमित कुमार रंजन की जिंदगी के बारे में, इनकी संघर्ष और सफलता के बारे में। आपको बता दें, अमित कुमार मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और हाल फिलहाल दिल्ली में निवास करते हैं। ये एक आईईसी एंड डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलिस्ट हैं। वर्तमान में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार से जुड़े हैं। 15 वर्षों की कड़ी मेहनत और व्यापक अनुभव के बाद आज इन्होंने सफलता का ये मुकाम पाया है। सिर्फ 9 to 6 जॉब करना ही इनकी जिंदगी का मकसद नहीं था, बल्कि ये सोसाइटी में कुछ अच्छा बदलाव लाना चाहते थे। सोसाइटी के लिए, जी हाँ, हमारे समाज के लिए कुछ बेहतर काम करने की इसी इच्छा ने इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इनकी इस सोच को घर वालों ने भी सराहा, इनका पूरा समर्थन किया और इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी के समर्थन के कारण आज ये वो सब कुछ कर पाए जो ये करना चाहते थे। दोस्तों, जिंदगी के इस सफर के दौरान चाहे हालात कुछ भी रहे हो, लेकिन इन्होंने कभी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। मुश्किलें कभी इनके हौसले, जज्बे और जुनून को पस्त नहीं कर पाई और शायद इसीलिए आज ये अपने प्रयासों में पूरी तरह सफल रहे हैं। इनकी कहानी आज आपको यही सिखाएगी दोस्तों कि जिंदगी में चाहे लाख मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन जरूरी ये है कि आप बस खुद पर अपना भरोसा बनाए रखें और अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि आपका भरोसा ही आपको जीत के नजदीक ले जाएगा। दोस्तों, ये कहानी रोचक होने के साथ ही शिक्षाप्रद भी है, जो आपको जिंदगी का एक नया पाठ पढ़ाएगी, आपको एक नई सीख दे जाएगी। तो आइए अब मिलते हैं सीधा कहानी के कहानीकार अमित कुमार रंजन से और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी, इनके अनोखे अंदाज में, इनकी अपनी जुबानी। My name is Amit Kumar Ranjan. I'm basically from Bihar, and my parents are having a small business in a very remote town, which is called Banmanki, in Purnia district. Right now, I'm in Delhi, associated with the Ministry of Jal Shakti under Department of Drinking Water and Sanitation, and I'm working for Jal Jeevan Mission program. About my journey from very far native land of Bihar, very small households are there, chota kasba kind of things, and from there to Delhi and with the ministry in the government of India, it was very 15 years of experience. 15. It took me 15 years actually to be in this position. While I was working with, in NCERT, I was doing their research kind of thing. I have to visit field, I have to conduct stories, I have to meet with the people and have some, the question answer kind of thing. So that reminds me my childhood. While I was, interacting with my friends, and they used to say कि यार पता है दिल्ली वाली जो जॉब है ना वो अपन लोगों के लिए नहीं है, अपन तो इधर ही पढ़ेंगे, इंजीनियर बनेंगे। हमारे फादर ने, हमारे रिश्तेदारों ने कहा इंजीनियर ही एक स्कोप है। तो उस कॉन्सेप्ट को मतलब हम लोग, आई वाज नॉट अवेयर कि वेयर आई शुड गो टू have some feedback about my education, what kind of education I should have. So matlab, it was all blank, but yeah, I have something in mind that we have to work for the society. And my entire friends are thinking like engineer ban jayenge, foreign currency mein kamaenge, bahar jayenge, like that. But something some spark was there in my mind. So while I was joining this Department of Drinking Water, which is directly benefiting 19 crore rural household and the families. The women face the drudgery, the young girls are asking and forced to be accompany her mother to fetch the water for the daily basis of drinking needs. And the father is sitting in the home, he also can't help because he have to go for the earning.
So these whole concept to benefit the society, to end the drudgery, to enhance their living standard, and enhance their health indicator, I come and join this department. This was my whole story of working in this sector, and really I'm enjoying the work, whatever I am doing, and I think my ways are way too long, way too long. Challenges to be in here, actually, matlab, it just happened. Uh, I was never think of the, I cannot do this. Whatever the thing is, I'm telling you very frankly, if in my wallet I have 5 rupees, I have the confidence of 1 lakh rupees. My spark, my speaking, my confidence never goes down. So the challenges I faced, how to tackle the people, how to interact with the community, and the requirement of community to be aligned with the government and to be aligned with the program which we have. The gap of communication from that and this is very much in there. And frankly speaking, my father, my mother, and after marrying my my girlfriend, the last 4 years, it's in December 2017, I married to her. She supported me very well. She always encouraged me to read more, to research more, and to work whatever I feel like. Matlab, I can do the 9 to 5 kind of job. I was having that kind of job, but I left that job because this is not my age to be relaxed and sit and just do 9 to 5 kind of job, 1 lakh रुपए की salary लो और यहाँ से चले जाओ, like that. No, I wanted मेरी जो लाइफ का कुछ पार्ट है वो कम्युनिटी में डिलीवर हो, वो सोसाइटी को चेंज करने के लिए हो, एंड इसके लिए मुझे मेरी फैमिली और मेरी वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है. Actually, the role model of my life is, the base of my life is one. I love my mother very much, but in this case, my father. कोई भी प्रॉब्लम होता है, he just used to say, tap me, hug me, and say like, हो जाएगा, एक बार स्टार्ट करो, हो जाएगा, रास्ता दिखेगा. और कोई भी चीज ऐसी नहीं है दुनिया में जिसको कि बात करके सुलझाया नहीं जा सकता, जिसको कि करने के बाद खत्म नहीं किया जा सकता है. कोई भी चीज तब तक ही आपको मुश्किल लगती है जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं करते. ये हमेशा मैं अपने I used to work anything, I got any project, I got any, assignment, I have to do this thing, but I'm, start thinking, अरे ये तो नहीं हो पाएगा. I used to give up, but that thought always connected me. Start तो करो, हो जाएगा. In career, you need 3 things. First tip, have a very good friends. Second, choose the right course where you have to, seeing your future. Don't fall in that prey कि society क्या कहेगी, शर्मा जी क्या कहेंगे, वर्मा जी क्या कहेंगे. Don't think. Listen to your heart. And third, whatever you are doing in your job, just enjoy it. If you are not enjoying, quit and search for that which satisfies you. These are the 3 tips which I used to give. And this academic thing is very much important, and the exposure in the right time in the right place, this is also luck. But yeah, I believe hard work over luck. My current position is I'm handling over all the states. I used to communicate on a daily basis. My background is journalism and mass communication. In my family, entire family, किसी को भी पूछो, journalism was nothing. मतलब इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, ये 3 चीजें हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो और कुछ भी हो सकता है. तो आई डोंट नो, मतलब लाइक दैट. सो आपके अंदर से वो आवाज आती है कि आपको करना क्या है. तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जब मैंने 2008 में किया, उसके बाद मुझे भी नहीं पता था मुझे क्या करना है. बट ऑल ऑफ सडन आई जस्ट गॉट टू रियलाइज कि मेरे पास जो स्किल्स है, हाउ नाइसली यू आर टॉकिंग, how nicely you are treating the people, because this universe, whatever you are saying, it is vibrating and going far and returning back as a boomerang.
So do the best in your in your lifestyle. Always respect whatever you are doing and give your 100% in your job profile. Don't lie. Actually, it will give you a little, satisfaction for a shorter time, but don't lie about what you can't do. हाँ सर, ये तो मेरे से हो जाएगा, अभी करके देता हूँ, and then after 10 minutes you have nothing. So आज की डेट में मैं भारत सरकार के साथ एसोसिएटेड हूँ, नेशनल लेवल पे हूँ. यहाँ आने के लिए कम से कम आपको मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो आपके पास अपनी स्किल सेट के अलावा आपके अच्छे दोस्त काम आते हैं, आपको अपनी कॉन्फिडेंस काम आती है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड तो है ही, इसके अलावा आपको ट्रस्ट वर्दी होना पड़ता है, एंड आपका कॉन्फिडेंस हमेशा आपके साथ चलता है. So be confident, work whatever you can do. If you are enjoying the job, it will give you satisfaction, and always believe in yourself. This is the fact which I can think of, and I will recommend कि आप इन चीजों को क्या ध्यान में रखें जब भी आप हमारे जैसा बनना चाहें. तो बचपन को मतलब आज के लेंस के हिसाब से देखें तो कह सकते हैं कि यस, मैं अपनी टीम का कैप्टन था, मैं क्लास में उतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में, लेकिन शैतानी में नंबर 1 था. मतलब जहां भी थे मैं वो नंबर 1 था. और आज की डेट में जब मैं यहाँ नेशनल लेवल पे अपने 5 से 6 लोगों की यहाँ पे नेशनल टीम है, ऑल ओवर स्टेट्स में हमारे स्टेट कंसल्टेंट्स हैं, आईसी के ऑफिसर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं इस प्रोग्राम को और अचीव करने के लिए और मास लेवल तक एग्जीक्यूट करने के लिए. तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो टाइम के साथ आती हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो आपको सिखाती हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरीवन. एक ऑटो रिक्शा वाला भी आपको जिंदगी के वो एहसास दे जाएगा, वो एक्सपीरियंस शेयर कर जाएगा जो आपको 4 मंजिला इमारत में बैठे ऑफिस का कोई एक बंदा नहीं दे सकता. सो ऑलवेज ट्राई टू लर्न एंड बी कॉन्फिडेंट व्हाटएवर यू आर डूइंग. I love about my job is to, whatever I'm doing on a daily basis, it is being reflected. I am amplifying the works which are, being done at the ground level. ब्लॉक में बैठा या गांव में बैठा सरपंच, ग्राम प्रधान इतनी मेहनत कर रहा है कि एक घर में एक महिला को पानी मिले टैप से. उस पानी की वजह से जो उन्होंने अपनी पूरी जीवन काल में, मतलब वो बाहर जाती रही, पानी की वजह से दिक्कतें आती रही, अपनी छोटी बच्ची को जो है वो अपने साथ लेकर के जाती रही हैं. और इन चीजों को जो मैं डेली बेसिस पे एम्पलीफाई करता हूँ, सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ, मीडिया के साथ इंटरेक्ट करता हूँ. इसके लिए मीडिया बात करे, जो हमारे सक्सेस स्टोरीज है, हमारे जो वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, हम इन पे एक्सटेंसिव काम करते हैं और इसको पुश करते हैं. तो ऑन अ डेली बेसिस जो मैं काम कर रहा हूँ वो रियलिटी में दिखती है, और जो दिख रही होती है उसको हम आगे पुश करते हैं कि और भी लोग हमारे इस मुहिम के साथ जुड़े, जल जीवन मिशन के जो सोशल काउज है इसके साथ जुड़े और समाज की बेहतरी के लिए एक साथ एकजुट होकर के काम करें. द अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ इज माय वाइफ. एक बिहारी को बहुत अच्छी पार्टनर है मेरी, पढ़ी लिखी है. पढ़ी लिखी के अलावा उनका जो सपोर्ट करने का तरीका है दैट इज वेरी डिफरेंट. एंड हम दोनों मास कम्युनिकेशन से हैं. वो पीएचडी कर रही हैं और मैंने मास कॉम करके अब आगे पढ़ाई कर रहा हूँ. सो मेरे इस इंटायर लाइफ में मैं पीछे की जो मेरे कहते 30 इयर्स का एक्सपीरियंस में देखूं, लाइफ देखूं, और आगे का जो आने वाला 30 इयर्स है उसको देखूं, तो मैं जॉब के अलावा, मतलब जॉब, सर्टिफिकेट, अच्छी सैलरी, इन सब के अलावा जो अचीवमेंट है, जो रियल वैल्यू है, वर्थ है आपकी फुल लाइफ के लिए, वो एक अच्छा पार्टनर होता है. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय पार्टनर, माय सोलमेट, and thanks to her for being there always. My wife's name is Vandana, Vandna. A nahi hai beech mein. I am the A of our life. Amit, I would like to share the childhood memory where after my schooling, after the school time, हम लोगों को हर दिन स्कूल का एक फिक्स कुछ होता था. झगड़े होने हैं तो उसके लिए क्या तैयारियां होती थी कि 2 बजे के बाद से हम लोग तैयार हो जाते थे कि ना आज इस बंदे की कुटाई करनी है. और कुटाई कैसे होती थी, वो एक
एल्युमिनियम का बक्सा होता था हमारे पास, हम उसमें ही अपनी किताबें रखते थे, नोटबुक्स रखते थे, और उसमें हम अपने बैठने का जो है वो भी रखते थे। तो उस एल्युमिनियम के बक्से के सबसे कोने वाले भाग को हम लोग थोड़ा सा नुकीला बना के रखते थे, कि जिनकी कुटाई करनी होती थी स्कूल के बाद, पूरे रास्ते उनको वो बस टैं टैं पीछे से आगे से ओ, बंदा परेशान हो जाता था। और जब वापस घर आते थे तो फिर वही फादर की चीजें, ये कैसे कर लिया, वो कैसे कर लिया। तो आई यूज टू गो बेड के नीचे छिप जाना, वो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन था, क्योंकि पापा वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। और अगर किसी तरीके से उन्होंने मुझे बाहर निकाल भी लिया तो मम्मी सामने आ जाती थी। और कभी कभार उन्होंने भी मेरी वजह से थोड़े कहते एक बांस, आप जानते होंगे, बैम्बो का एक बहुत पतला सा वो स्टिक होता है ग्रीन कलर का, उससे जो मार पड़ती है ना, वो बॉस 1-2 दिनों तक ना आपको अलग ही दुनिया में लेके रखता है। तो आप फिर सोचते नहीं हो कि एक हफ्ते मुझे फिर ऐसा कुछ करना है। तो हम लोग यही है, एक हफ्ते तक खाते थे और फिर अगले हफ्ते फिर से तैयारी होती थी। और ये बचपन की कुछ चीजें हैं जो मुझे याद आती हैं। उसकी वजह से ही मैं बहुत ही डिसिप्लिन भी हूँ अपनी लाइफ में, और मैंने रिस्पेक्ट करना भी सीखा है। तो बचपन की कुछ चीजें हैं जो हमेशा आपके साथ रहती हैं, लॉन्ग लिव होता है उनके इफेक्ट्स। सो इन चीजों को हमेशा याद रखना चाहिए, उसी के बेसिस पे फिर आप आगे भी बढ़ते हैं अपनी जिंदगी में। अगर मुझे टाइम मशीन में डाला जाए तो मैं 2006 में जाना चाहूंगा, जहां मैं एक्टिंग किया करता था, जहां मैं थिएटर आर्टिस्ट था। और मुझे एक बंदे ने सजेस्ट किया था कि एक्टिंग एंड थिएटर ये ऑलवेज सस्टेन नहीं है, इसमें हमेशा जॉब होता नहीं है, यू ऑलवेज हैव दैट स्ट्रगल। सो इफ यू नीड समथिंग गुड लाइफ, तो कुछ टेक्निकल डिग्री ले लो। मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने बताया कि यू आर ऑलरेडी ग्रेजुएट, तो आप मास्टर्स में एडमिशन ले लो एंड डू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, क्योंकि उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, दोनों चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। सो मैं अगर टाइम मशीन में जाऊं तो मैं जा करके उनको आज के लिए थैंक्स कहना चाहूंगा उस एडवाइस के लिए। और जहां मेरा एडमिशन था, मैं चाहूंगा कि मुझे और कहीं अच्छी जगह एडमिशन मिलता, लाइक IIMC एंड जामिया मिलिया। सो दिस वाज दैट कि मैं टाइम मशीन में जाके अपने जो वेल विशर थे मेरे, मैं उनको थैंक्स कहना चाहूंगा उनके बेहतरीन एडवाइस के लिए। काम के अलावा मुझे जो हम लोग की कैबिन है, उस कैबिन में कम से कम 12 लोग हम लोग बैठते हैं। सब लोग चुपचाप एकदम कंप्यूटर के सामने टिक 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 काम करते रहते हैं। एंड आई यूज्ड टू सडन क्रैक एनी जोक, अचानक से लाइक अनाउंसमेंट, सुनिए आज ये हो गया वो हो गया। तो मुझे हंसाना पसंद है, मुझे मिमिक्री करनी पसंद है, मुझे गाना गाना पसंद है। समटाइम्स मुझे गाते हुए सुनते हैं तो मेरे बगल वाले भी हंसते हैं, और समटाइम्स सामने वाले मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मुझे गाना अच्छा लगता है, लोगों की मिमिक्री करनी अच्छी लगती है। अगर मैं कुछ ऑब्जर्व करता हूँ तो इररिस्पेक्टिव ऑफ सीनियर एंड जूनियर, आई यूज्ड टू मिमिक दैट। सर आज आप ऐसे आ रहे थे, ऐसे घूर रहे थे, आप आज ऐसे हंस रहे थे, अच्छा लग रहा था, दैट वाज गुड। सो ये है, आपको अपने वर्किंग स्पेस में, आपको अपने ऑफिस में हमेशा एक अच्छा माहौल बना के रखना चाहिए, कि आप अपने लोगों के साथ कंपटीशन है, दैट इज देयर, इट्स फाइन, बट एक हैप्पी माहौल हो, छोटे छोटे ब्रेक हो, आप एक दूसरे से बात करें। अगर किसी ने छुट्टी ली थी किसी कारण से, आप जाके उनसे पूछें छुट्टी किस बात की थी, घर में सब ठीक है। पता है ये छोटी छोटी चीजें ना, आपको अपनी कुलीग के साथ में आपको पता नहीं चलेगा वो आपका कब से बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। These are the things which I am always having in myself, and I will take it further wherever I go. ये सॉन्ग मैं अपने दोस्तों के अलावा उन्हें इसलिए क्योंकि उन्हें मेरी आवाज अच्छी लगती है, बट मैं ट्रूली डेडिकेट करना चाहूंगा मेरी लाइफ पार्टनर को। ये वाला गाना हमने शादी के पहले एक आजकल चलता है, आजकल कुछ सोसाइटियल वो है कि फोटो शूट करना है लाइक दैट, एंड वो एक अच्छी मेमोरी भी हो जाती है। तो उसमें हमने वो वाले सॉन्ग को ऐड किया था। तो उस गाने को बजने के बाद जब मैंने देखा कि मेरी वाइफ
उतनी अच्छी सिंगर नहीं है, बट जो एफर्ट वो लगाती है गाना गाने में वो बहुत ही अमेजिंग होता है। अगर आप विदाउट सॉन्ग बैकग्राउंड सिर्फ उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखें तो वो बहुत एफर्ट लगाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये गाना उनको डेडिकेट करना चाहूंगा, एंड माय फ्रेंड्स आल्सो, बिकॉज दे यूज्ड टू एंजॉय दिस सॉन्ग एज वेल। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया का गाना है, मैं तेनू समझावा की। हम्म, मैं तेनू समझावा के ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यू जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। कोविड ने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी। मैंने जो कोविड से सीखा है, फिजूल खर्ची रोक सकते हैं हम। सामाजिक वो एक स्टेटस जो होता है ना, जाना, पार्टी करना, मिलना, इससे ज्यादा बेहतरीन है इस कोविड के टाइम में रियल वैल्यू ऑफ द रिलेशन। आपके साथ कौन है आपके मुसीबत में, आपके क्योंकि कोविड के टाइम में उस टाइम ऐसा था कि सब कोई अपने घर में अपने आप को, अपनी फैमिली को बचाना चाह रहे थे। लेकिन आपका अपना दोस्त है ना, वो मास्क पहन के आएगा, एप्रन पहन के आएगा, बट वो आपके साथ आपके आपके लिए खड़ा होगा। आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं आपके साथ खड़े रहते हैं। तो कोविड ने मुझे रिलेशनशिप की वैल्यू करनी सिखाई है। कोविड ने मुझे फिजूल खर्ची के बिना भी जिंदगी बहुत अच्छे से जी जा सकती है, ये सिखाई है। कोविड ने मुझे सिखाया है कि आप अपने पर्सनल हाइजीन, आप अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, इसने ये सिखाया है। और कोविड की वजह से ये आई एम रियलाइजिंग कि बहुत बहुत ही लोगों की जॉब गई है। बहुत सारी कंपनियां, छोटी छोटी स्टार्टअप्स बंद हो गई हैं। उसके बावजूद भी जो हौसला लोगों में है अब भी, ऐसा नहीं कि जॉब चली गई तो वो चुपचाप से घर में बैठ गए थे। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत कोशिश की, और उनमें से कितने आगे निकल के उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ में अपने आप को अलाइन किया। उन्होंने कुछ ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट कर दी हैं। सो कोविड आपको सिखाता है कि दीज आर द फेज। मतलब जिंदगी में ये किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा लॉकडाउन हो भी सकता है। अब जब हमने देख लिया है और आज हम थर्ड एंड फोर्थ वेव के आसपास बीच में हैं, तो आपको एक सबक मिलता है कि जिंदगी के जो भी मुश्किल हालात होते हैं उनके साथ जूझना है, उनके साथ अपने दोस्तों, अपने परिवारों के साथ खड़े रहना है कि वो अकेला फील ना करे। मेंटल हेल्थ के बारे में जरूर से आप बात करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने आप पे भरोसा रखें। फेज, मुश्किल हालात समय की डिमांड है, समय के साथ वो चली जाती है। आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, आप अपने रिलेशन को और डेवलप करने के लिए काम करें, और आप यू नो इसको इसको लेकर के प्राउड फील करें कि जो आपके पास है, जो आपको ऊपर वाले ने दिया है, जो जिस काबिलियत के साथ ऊपर वाले ने आपको नवाजा है, आप उसकी वैल्यू करें। देयर इज नो थिंक ऑफ ग्रेजुएट हूं तो ही नौकरी मिलेगी, नहीं। अगर आप में लिखने की कला अच्छी है, अगर आप बोल अच्छा सकते हैं, अगर आप डांस अच्छा कर सकते हैं, तो यूट्यूब पे जाइए और वहां पे बहुत बहुत सारी चीज है। टैलेंट्स आर वर्ल्ड वाइड थिंग। आपको कोई नहीं रोक सकता इफ यू हैव द रियल टैलेंट इन योरसेल्फ। सो स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, एंड बी कॉन्फिडेंट व्हाट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। आप मेरी कहानी का वो वाला पार्ट भी जानना चाहेंगे कि मास कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन दोनों एक साथ में कैसे एक साथ हो गए, एंड आप हो सकता है कि मैं तेनू समझावा का जो अगला ट्रैक है वो भी सुनना चाहेंगे। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
और अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं। आप मुझे फिर से हम लोग एक और वीडियो पे बात कर सकते हैं। आप अपने टॉपिक्स भी ये शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है उस पे। मुझे लगता है कि टीम पूरी एफर्ट करेगी इस तरीके के लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए कि आप इंस्पायर हों, आप कनेक्टेड हों, आप कुछ सीखें और एक दूसरे की मदद करते रहें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप सुन रहे थे अमित कुमार रंजन की सफलता की कहानी इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।